Welcome to Aswani classes coordinate geometry part 9. In the previous part we discussed about determinant and how to find its value. So if anyone is new in this part, you must go through part 8, that is based on area of triangle and determinant. Here first of all we try to find value of a determinant, then after we discuss the more results related to area of a triangle. So first of all let me write a determinant, because this determinant will come again and again. 2 3 0 5 0 2 1 minus 2 0. Okay, is a determinant having 3 rows and 1 2 3 columns. So it is a determinant of order 3. In order to find its value, we have to expand this determinant through any row or any column. किसी एक रो या कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड करते हैं. जैसे ये फर्स्ट रो के थ्रू अगर एक्सपेंड करते हैं तो पहले 2 लिखेंगे इनटू प्रोसेस है कोफैक्टर ऑफ 2, फिर प्लस फर्स्ट रो के थ्रू अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट 3 इनटू इट्स कोफैक्टर ऑफ 3 प्लस नेक्स्ट है 0 इनटू कोफैक्टर 3 इनटू कोफैक्टर ऑफ 3 कोफैक्टर ऑफ 0. This will gives you the value of the determinant. ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीखे हैं ये चीज. नाउ 2 इनटू कोफैक्टर ऑफ 2, ये है 2, इसका कोफैक्टर -1 का पावर, ये 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो 1 + 1. We leave the row and column through 2 and remaining element, these are the remaining element 0 2 -2 0 as a determinant. एक determinant पे लिख देंगे. This will gives you cofactor of 2. तो ये हो गया 2 into cofactor of 2 plus 3 into cofactor of 3, इसका cofactor -1 to the power, ये 3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, -1 to the power 1 + 2 एंड वी लीव दी, ये पूरा इसका कॉलम, ये रो छोड़ देंगे 3 का, और जो एलिमेंट बचा उसको लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट 5 2 1 0 5 2 1 0. This is cofactor of 3 plus 0 into cofactor of 0, whatever it may be, 0 into anything will come 0, so no need to write that. Okay, so it is -1 to the power 2 means plus, so it is 2 and what will be its value. ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 0 into 0, बीच में माइनस, फिर इधर से 2 into -2 into -2 -4 माइनस माइनस +4, -4 लिखेंगे, आगे माइनस था, एक साथ प्लस कर देंगे. 3 -1 to the power 3, तो -1 का पावर 3 -1 हो जाएगा, मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा. इसका वैल्यू 5 into 0, बीच में माइनस, 1 into 2 1 into 2 2, समझे, प्लस 0. Now find its value. 2 into 4, it is -2 -2 into -3, minus into minus plus 6 plus 0, so it is 14. So 14 is the value of this determinant.
So I hope you have understood what does it mean value of a determinant. Okay, you have also understand minor and cofactor of the elements of a determinant. Okay, now come to our main thing, that is area of triangle. In the previous video we discussed and derived the formula for finding area of triangle. So few more results related to area of triangle we want to discuss in this video. You must know how to find value of a third order determinant. Second order it is simple. One example here taken for third order determinant. क्लास 10 स्टूडेंट ऑल्सो मस्ट नो, इसको जान लीजिए डिटर्मिनेंट वाला क्या है. ठीक है, 10th में डिटर्मिनेंट वाला जरूरत नहीं है, लेकिन आखिर आपको देर सवेर 11 क्लास में इसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना. और डिटर्मिनेंट का यूज हमेशा फिजिक्स वगैरह में भी होगा 11 में, तो इसको बढ़िया सा सीख लीजिए. जो बताया जा रहा है सब सीखते जाइए, सब काम का चीज है. देखिए, इफ देयर इज अ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3, then its area of triangle को ये सिंबल से डिनोट करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज is the formula for finding the area of a triangle if all the three vertices are given. एक ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है, तो इस फार्मूला में बैठा देंगे. ठीक है, इस फार्मूला में बैठा के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, ये जो चीज है, ये पूरा ये जो एक्सप्रेशन है, इसी को लिखा जाता है हाफ. ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ऐसे लिखते हैं. इस डिटर्मिनेंट को अगर तोड़ेंगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा. देखिए ना, पहले x1 लिखेंगे, फिर उसका कोफैक्टर आएगा, ये y2 माइनस y3 आएगा ना. इस तरह से ये सारा चीज आएगा. ये इसको तोड़ने पर यही आएगा. तो उसको हम लोग इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखते हैं. बात समझिए. अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है और शॉर्ट में इसको ऐसे. अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए. जैसे ये है ट्रायंगल ए, ये है बी, ये है सी. coordinates of a b c are given. if you find area of triangle it will gives you positive. एरिया जो आएगा ना पॉजिटिव में आएगा. लेकिन आप अगर इधर से उसी को लिख दीजिएगा, ए बी पॉइंट को इधर ले लीजिएगा, सी पॉइंट को इधर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल गिव्स यू नेगेटिव वैल्यू. जैसे इसमें मान लीजिए 15 आया होगा ना, तो इसमें -15 आएगा ऐसा. तो एरिया मीन्स वी हैव टू टेक इट्स मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो इसलिए प्लस लेंगे. नेगेटिव में आने से भी उसका मैग्नीट्यूड लेंगे प्लस वैल्यू. तो क्लॉक इधर से क्लॉक वाइज अगर वर्टिसेस को लिख दीजिएगा ना ए बी सी, देन इट विल गिव्स यू इन टर्म ऑफ नेगेटिव. तो इसीलिए एरिया जब लिखते हैं ना, तो उसको मैग्नीट्यूड साइन देके लिखते हैं. मीन्स इट में कम पॉजिटिव, इट में कम नेगेटिव. ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, इसमें आप ऐसे मोड का साइन भी लगा सकते हैं बाहर में.
नेगेटिव भी आएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे, इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हम बताए इसको तोड़ने से ये आएगा, इसको तोड़िएगा ये आएगा, तो ये और ये इक्विवेलेंट है। इसी के इक्विवेलेंट ये भी है, हाफ x1 y1 x2 y2 प्लस हाफ x2 y2 x3 y3 प्लस हाफ x3 y3 x1 y1। इसको भी तोड़ेंगे ना उतना ही आएगा, ये एक ही बात है सब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको तोड़िए और तोड़ के देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, एकदम आएगा। हाफ तो कॉमन आएगा तीनों में, उसके बाद आप तोड़ दीजिए, तोड़ के कॉमन ले लीजिए x1 x2 x3, देखिएगा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, बाकी कट जाएगा। इसमें 2 4 6 टर्म्स होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। इसमें 2 4, इसमें भी 6 टर्म है, काटने का जरूरत नहीं है, कटेगा नहीं, नहीं नहीं, इसमें x1 अच्छा इनटू में होगा ना, ओके 6 टर्म आएगा, ठीक है, कटेगा भी नहीं, कॉमन ले लीजिएगा x1 x2 x3 ये आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन आइदर दिस और दिस, ये ज्यादा आसान होगा सिंप्लीफाई करने। हाफ लिख लीजिए x1 y1 x2 y2, हाफ x2 y2 x3 y3, हाफ x3 y3 x1 y1। ये तो आसानी से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, को फैक्टर वगैरह का भी झंझट नहीं। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आप इसको यहाँ ऐसे मोड साइन लगा सकते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी पॉजिटिव, सो यू कैन keep it under mode sign, or if you calculate, if negative comes we take its magnitude value positive. So you must remember this formula for area of triangle. ये सबसे आसान है याद रखना। हाफ x1 y1 x2 y2, हाफ x2 y2 x3 y3, हाफ x3 y3 x1 y1 is the easier to remember the formula for area of triangle. Okay, now तो देखिए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसीलिए डिटर्मिनेंट पहले थोड़ा डिस्कस कर लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये डिटर्मिनेंट कौन सा चीज है बीच में आ गया। कल बताए थे पार्ट 8 में डिटेल से बताइए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो यू मस्ट गो थ्रू पार्ट 8 एंड देन part 9, and this formula for area of triangle also already derived there, कैसे आया ये भी बताया गया है। Okay, so what we have learned that there is a triangle, any triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then its area is given by half, क्या होता है एक बार फिर से इसको बोलिए, इसका कारण है फिर से लिखने का, आप देखते जाइए थोड़ा। x1 y1 x2 y2, ओके, प्लस हाफ, ये सबसे आसान है याद रखना, x2 y2 x3 y3 प्लस हाफ x3 y3 x1 y1, this will gives you area of the triangle, right? ये तो ठीक है। अगर कोई 4 साइड वाला है, quadrilateral is there and whose vertices are suppose x1 y1, this point is x2 y2, this vertex is suppose x3 y3, this vertex is suppose x4 y4, then its area of this quadrilateral is given by half
x1 y1 x2 y2 प्लस हाफ, या हाफ एक साथ कॉमन ले लीजिएगा भी चलेगा, x2 y2 x3 y3 प्लस हाफ x3 y3 x4 y4, यहाँ x4 y4 भी है ना कोऑर्डिनेट, तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, प्लस हाफ x4 y4 x1 y1, बस. This will gives you area of the quadrilateral. If x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 are the vertices of a quadrilateral, then area of quadrilateral can be written like this. अगर कोई 5 साइड वाला रहेगा, 1 2 3 4 5, its vertices are suppose x1 y1 x2 y2, its vertices suppose x3 y3, its this vertex x4 y4, and this vertex x5 y5. Then area of this, what is Panchbhuj, area of the figure bounded by 5 sides having 5 vertices. मतलब पेंटागन है, उसका चारों साइड, पांचों साइड इक्वल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, साइड इक्वल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, 5 वर्टिसेस वाला फिगर है. तो इसका एरिया क्या होगा, सेम x1 y1 x2 y2 हाफ x2 y2 x3 y3 हाफ x3 y3 x4 y4 हाफ x4 y4 x5 y5 प्लस हाफ x5 y5 x1 y1. एक स्टेप और चला जाएगा आगे, ठीक है ना. यहां पर आता x5 y5, इसके बाद आगे हो जाता हाफ x5 y5 x1 y1, तो इसका एरिया आ जाएगा. इस तरह से जितना वर्टिसेस रहेगा उतना टर्म में उसको तोड़ देंगे. और इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ वेदर इट इज ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और हैविंग 5 साइड और 6 साइड, व्हाटएवर इट मे बी. ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए. 5 के लिए भी अपने से लिख लीजिए. ये होगा, यहां पर होगा x4 y4 x5 y5, नेक्स्ट होगा हाफ x5 y5 x1 y1. एक स्टेप और लिख लीजिए आप अपने से 5 के लिए. ये हो गया. नाउ आई वांट टू डिस्कस वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. एक और रिजल्ट देखिए. There is a triangle. Triangle means it is a plane figure bounded by 3 lines. 3 लाइन से घिरा हुआ प्लेस ही तो है ट्रायंगल. दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, एंड दिस इज ऑल्सो अ लाइन. दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सपोज A, this point of intersection is suppose B, this point of intersection is suppose C, then this ABC is a triangle. Secondly, these sides are line, and line always represented by a linear equation in 2 variable. Class 10 students already read linear equation in 2 variable. If you haven't read, you must go through linear equation. क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन चैप्टर में ये सब डिस्कस किया गया है, वीडियो उसका बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और लीनियर इक्वेशन देख लीजिए. लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने से एक स्ट्रेट लाइन आता है, मीन्स ए लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो ये जैसे लाइन है, ये एक साइड है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जैसे a1x प्लस b1y
plus C1 equal to 0. In this way, we can represent it by a linear equation. This is a line. This can also be written by a linear equation like a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Third line is suppose a3x plus b3y plus c3 equal to 0. In this way, these are linear equation in two variable. Linear equation in two variable represents a line. Okay. Means there is a triangle and whose sides are represented by the line a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, and a3x plus b3y plus c3 equal to 0. We want area of this triangle. Triangle ABC, area of triangle ABC चाहिए. ठीक है. एक तरीका ये है, इफ यू सॉल्व दीज टू इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो वट एवर सोल्यूशन विल कम दैट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन टुगेदर, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कीजिएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव्स यू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन. ये लाइन का इक्वेशन है, ये इस लाइन का इक्वेशन है, ये दोनों को अगर मिला के सॉल्व कीजिएगा कंबाइनली तो वट एवर सोल्यूशन विल कम that will gives you this point. This is the common point for both the lines, so this will be the solution of these two linear equation. तो एक तो वो तरीका है, ये दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेंगे, ये दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेंगे, फिर ये दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेंगे, तीनों वर्टिसेस आ जाएगा. वर्टिसेस आ जाने से हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, नहीं उसी में बैठा देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे. लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी होता है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, वर्टिसेस आएगा, फिर उसमें बैठाएंगे तब एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा. बट दिस इज ऑल्सो वे टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस. चलो देखिए, 1/2, देखिए ये कैपिटल C लिख रहे हैं ना, C1 C2 C3 जो भी आएगा इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे इनटू डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 its square. This will gives you area of the triangle. सीधा कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं, सिंपल डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, ये A1 B1 C1, सेकेंड रो में A2 B2 C2 बैठा दिए, थर्ड रो में A3 B3 C3 बैठा दिए. एंड व्हाट आर दिस? ए कैपिटल C1, कैपिटल C2 एंड कैपिटल C3, ये जो है आपका आर कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल C1, स्मॉल C2 एंड स्मॉल C3 रिस्पेक्टिवली. ये जो है ना C1 C2 C3, ये तीनों का कोफैक्टर है. ये कोफैक्टर आप समझ गए, प्रीवियस वीडियो में बढ़िया से बताया गया है कि व्हाट डज इट मीन कोफैक्टर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दिस डिटर्मिनेंट इसका स्क्वायर है, याद रखिएगा, बाय यहाँ इनटू में होगा 1/, मतलब ये नीचे आएगा C1 C2 C3. C1 C2 C3 आर दी कोफैक्टर्स. ठीक है, देयरफॉर ये C1 जो है कैपिटल C1 ये कोफैक्टर है
किसका, C1 का। तो कोफैक्टर क्या आएगा, ये देखिए ये जो C1 है ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 का पावर 3 + 3 6, मतलब पॉजिटिव आएगा। और डिटर्मिनेंट होगा ये C1 का रो कॉलम छोड़ दीजिए, A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3, ये होगा आपका। नाउ व्हाट विल बी C2? C2 मीन्स कोफैक्टर ऑफ दिस। इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो -1 to the power 2 + 3 दैट इज 5, मतलब माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा और ये इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3 आएगा माइनस साइन के साथ। अब ये जो माइनस है ना, ये जो A1 B1 A3 B3 है, आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए, A3 B3 A1 B1 ऐसा अगर कीजिएगा तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस लेके इसका वैल्यू निकालिए और इसका वैल्यू निकालिए, सेम आएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसमें माइनस लीजिए ना ये, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जो नंबर अगर रहेगा तो सेम आएगा। ठीक है, जैसे 3 2 5 6 है, मान लीजिए आगे में माइनस है, आप इसको 5 6 3 2 कीजिए, दोनों सेम होगा, है ना। चलिए, एंड C3, what will be C3? स्मॉल C3 है ना, स्मॉल C3 मीन्स सॉरी एक कैपिटल C1 कैपिटल C2 एक कैपिटल C3 है। कैपिटल C3 मीन्स दिस वन, मीन्स कोफैक्टर ऑफ दिस। कोफैक्टर ऑफ दिस मीन्स -1 to the power, दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो -1 to the power 6, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ये छोड़ देंगे, इधर से ये छोड़ देंगे, A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2। बहुत आसान है याद रखना। देखिए C1 निकालना है, ये C1, तो 1 छोड़ दीजिए, A2 B2 A3 B3। C2 निकालना है, 2 छोड़ दीजिए, A3 B3, फिर A1 B1 आएगा। फिर C3 निकालना है, 3 के बाद फिर 1 आएगा, A1 B1 A2 B2। In this way easily you can find C1 C2 C3, and by substituting here you can find area of the triangle. Secondly, ये C1 C2 C3 तो हुआ, इसको मिटाते हैं, है ना। देखिए और ये जो डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे ना, जैसे थ्रू थर्ड कॉलम अगर इसको रिप्लेस कीजिएगा तो C1 इंटू को फैक्टर ऑफ C1, यही तो प्रोसेस है वैल्यू निकालना। C1 इंटू को फैक्टर ऑफ C1 मीन्स कैपिटल C1 प्लस ये C2 इंटू को फैक्टर ऑफ C2 कैपिटल C2 प्लस C3 इंटू को फैक्टर ऑफ दिस दैट इज कैपिटल C3। ये जो C1 C2 C3 निकला है ना, ये हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप C1 C2 C3 निकाल लीजिए, कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। दीज आर को फैक्टर्स ऑफ दिस स्मॉल 1 स्मॉल 2 स्मॉल 3 इन दिस वे, एंड देन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट C1 इंटू जो इसका वैल्यू आएगा प्लस C2 इंटू ये वैल्यू प्लस C3 इंटू ये वैल्यू करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर, फिर उसी को तो लिखना है तीनों को इंटू करके। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल
whose vertices are point of intersection of three lines, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0. एक चीज और देखिए जरा, जरा सा ध्यान से देखिएगा इसको. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC as this formula can also be written in this way. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल स्क्वायर, डेल मीन्स वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ओके, बाय 2, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, आप लिख लीजिए सिंपल डेल 1 डेल 2 डेल 3, वेयर देखिए दोनों एक ही है, थोड़ा सा समझिए, वेयर डेल मीन्स वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, this is your del. and del 1, ये जो del 1 अब हम लोग लिख रहे हैं, ये सीधा डिटर्मिनेंट लिखिए, x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा आपका डेल. ये जो डेल 2 यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा x2 y2 x3 y3. वो अच्छा, यहाँ a1 b1 है, a1 b1 है तो आप a1 b1 यूज कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लीजिए. एक मिनट, इसमें हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ना, तो आपका हो जाएगा a1 b1 a2 b2, है ना, ये हो जाएगा a2 b2 a3 b3. वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेस होने से वो यूज करते हैं. इसमें चूंकि आपका लाइन था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0. तो इस केस में a1 b1 c1 a1 b1 a2 b2 a3 b3 वर्टिसेस आएगा, तो छोड़ दीजिए, उसमें कंफ्यूज मत कीजिए इसमें. और इसका वैल्यू आएगा a3 b3 a1 b1. ऐसा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल स्क्वायर बाय 2 डेल 1 डेल 2 डेल 3. डेल मीन्स ये ट्रायंगल का, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बाय 2 डेल 1 डेल 2 डेल 3. डेल 1 मीन्स सीधा ये देखिए, ये नीचे में c1 c2 c3 था ना, तीन का प्रोडक्ट था ना, माने ये इंटू ये था, यही तीनों को तो प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई इधर हो कोई उधर हो. तो देखिए एक डिटर्मिनेंट ये था a1 b1 a2 b2, दूसरा था a2 b2 a3 b3, तीसरा था a3 b3 a1 b1. तो देखिए वही तीन है, तो एक a1 b1 a2 b2 है, एक a2 b2 a3 b3 है, एक a3 b3 a1 b1 है. तो सिंपल इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं. तो ये ज्यादा बेटर है, आपको ये तीनों कोफैक्टर निकाल लेना है c1 c2 c3 का. और इसका कोफैक्टर निकालने के लिए सीधा c1 में लिखिए a2 b2 a3 b3, c2 में लिखिए a3 b3 a1 b1 और c3 में लिखिए a1 b1 a2 b2. और फिर इसका एरिया भी तो निकाल सकते हैं वैसे करके, c1 इंटू कैपिटल c1 प्लस c2 इंटू कैपिटल c2 प्लस c3 इंटू कैपिटल c3 करके निकाल लेंगे और इसमें बैठा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा. या ये भी ऐसे अगर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं तो सीधा ये आपका डेल के जगह पर ये हो जाएगा डेल स्क्वायर. ये भी एक तरीका है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 आप ले सकते हैं.
So in this way we can find area of a triangle. Okay, so since everywhere determinant is used, so why we discussed determinant. So for class 10 is student particularly, you just know what is determinant, how to find its values. Okay, class 11 को तो सब जानना ही है. ठीक है. In this video keep this much. In the next video, means in part 10, we solve some problems based on this area of triangles. Area of triangles के ऊपर कुछ important सवाल बनाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे. So in this video this much. Thank you for watching.